بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اوپر والی آیت کا اوپر والے رکوع کی لاسٹ آیت، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اہل کتاب کے متعلق بیان تھا کہ اس سے اوپر مطلب پیچھے سے تذکرہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 149 سے ہی، کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تو فرقہ ڈالتے ہیں، کچھ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ رسولوں اور اللہ کے درمیان تو فرقہ نہیں ڈالتے بلکہ سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہی کی نسبت سے اب یہاں پہ یہودیوں کی کچھ اور تذکرے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ان کی خباثتوں کے، ان کے برے جو اعمال تھے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھ سے اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ ان پر آسمان سے قرآن نازل کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پریشان ہو گئے ہیں یہ سن کے کہ ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ کیسے پوری کی جائے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خط جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے لیے آئے اور انہی کی طرف آئے، تب وہ ایمان لائیں گے۔ حالانکہ سمجھا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خط ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی بار ان کو ڈائریکٹ مخاطب فرما کے ان کے اعمال بھی ظاہر کیے ہیں اور ان کو صحیح راستے پہ آنے کی دعوت بھی دی ہے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہماری طرف ڈائریکٹ آئے، جو اور کسی کی طرف بھی نہ آنا ہو، یعنی صرف خاص طور پہ ہمارے لیے ہو اور اس کے اندر تحریر لکھی ہوئی ہو، اور یعنی اپنی اوقات دیکھے بغیر ہی اتنی بڑی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے تو انہوں نے ایک کتاب مانگی ہے، ایک رسالہ، ایک خط مانگا ہے۔ موسیٰ سے تو یہ اس سے بھی بڑے بڑے سوال کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے طریقے سے تسلی دی۔ ایک تو سوال بہت بڑا تھا، دوسرا جب اپنے بھائی کی بات سنی کہ میرے سے پہلے جو میرے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، جب اس طرح کی کوئی اگزامپل سامنے ہوتی ہے نا تو پھر تکلیف سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ڈیمانڈ انہوں نے کی؟ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں اللہ دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم ظاہرہ آنکھوں سے، یہ جو ہمارے سر میں آنکھیں لگی ہیں ان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا شکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑا اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ یہ واقعہ بہت ڈیٹیل سے قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے بتایا اپنی قوم کو کہ میں تو رات لے کے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسے کیسے یقین کر لیں آپ کی بات پہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے 70 سردار مقرر کیے اور ان کو بھیجا کہ جاؤ تصدیق کر کے آؤ۔ دیکھیے ان کے ایمان کی کنڈیشن دیکھیے ذرا، نعوذ باللہ، کہ نبی کی زبان پہ ایمان نہیں، تصدیق کرنے کے لیے اپنے 70 لوگوں کو بھیجا۔ وہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز میں گفتگو فرمائی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ جب انہوں نے آواز سن لی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ آواز کس کی ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی بول رہا ہے ہم اس کو دیکھ کے پھر یقین کریں گے۔ تو اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک کڑک بھیجی، ایک چیخ اور چنگھاڑ جیسے بجلی کڑکتی ہے اس طرح، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گڑ گڑانے لگ گئے اللہ تعالیٰ کے حضور کے، اللہ تعالیٰ جی میری قوم تو پہلے ہی بہت گستاخ اور اس ٹائپ کی ہے، انہوں نے تو مجھے چھوڑنا نہیں، انہوں نے کہنا کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو یہ وہاں لے گیا اور مار کے واپس آ گیا، تو اس لیے آپ پلیز ان کو زندہ کریں۔ منت سماجت کی
تو اللہ ताला ने उनको दोबारा जिंदा करके भेज दिया। ये वाकया पेश आया। सुम्मत तखज़ इजला मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात। फिर क्या हुआ? इसी के ज़िमन में अल्लाह ताला ने एक और वाकया की तरफ इशारा किया कि उन्होंने सारे सब कुछ जाहिर होने के बाद भी, सारे दलाइल वाज़ेह होने के बाद भी कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं और मूसा अल्लाह के नबी हैं, बछड़े को माबूद बना लिया। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, फिर हमने ये भी माफ कर दिया। इन्होंने बछड़े को माबूद बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रात के इत्काफ के लिए तूर पर गए थे और अपनी कौम अपने बड़े भाई हजरत हारून के हवाले करके गए थे, तो हजरत हारून नरम तबीयत के थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारूब तबीयत के थे। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि हजरत मूसा को देर हो गई है वापसी में, तो इन्होंने हजरत हारून की बात को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके बछड़ा बना लिया। सामरी ने एक सोने का, एक गाय का बछड़ा, एक बुत बनाया और उसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाया कि उसमें आवाज पैदा होती, और सारी कौम को गुमराह कर दिया और कहा कि ये तुम्हारा माबूद है दर हकीकत। तो इस तरह कुछ लोगों ने इनमें से जो है बछड़े की पूजा की और कुछ ने नहीं की। तो हजरत मूसा जब वापस तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने फरमाया कि जिन्होंने बछड़े की पूजा की है, अ, उनको उनके अपने ही भाई जो हैं, अपने खानदान के लोग, अपना बाप, अपना भाई, अपना बेटा कत्ल करेगा। तो इस तरह उन्होंने अपने ही लोगों को कत्ल किया, ये उनकी सजा थी। लेकिन कुछ थोड़े से लोगों को कत्ल करने के बाद ही अल्लाह ताला फरमाते फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, हमने उनको माफ कर दिया। यानी जितने सबने पूजा की थी सारे नहीं मारे गए, बल्कि थोड़े से जब उन्होंने कत्ल कर दिए तो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। व आतैना मूसा सुल्तान मुबीना, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने मूसा को वाज़ेह गलबा अता फरमाया। व रफ़अना फ़ौक़हुम तूर बिमीसाक़िहिम, फिर अल्लाह ताला फरमाते कि हमने इनसे पक्का वादा लेने के लिए, ये सब अल्लाह पाक अपने नबी को तसल्लियां दे रहे हैं कि ये देखो, इनके साथ, इन्होंने मूसा के साथ ये किया, तो आपके साथ तो ये इतने बड़े सवालकारी नहीं रहे, तो आप परेशान ना हो। तो हमने इनके ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद किया इनसे पक्का वादा लेने के लिए। वकुलना लहुम उदखुलुल बाब, ये भी वाकया इंशाल्लाह पीछे भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। बार बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कुरान पाक में कि इनसे वादा लेने के लिए इनके सरों के ऊपर तूर पहाड़ को अल्लाह ताला ने ला के खड़ा कर दिया था। इसके भी मुख्तलिफ अंदाज मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। कुछ ने लिखा कि उलट दिया, और कुछ ने लिखा कि ऊपर आके इनके जो है वो सरों के ऊपर मंडलाने लगा, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे इनके ऊपर गिरने ही वाला था। तो मुख्तलिफ तरीकों से बहरहाल इन्होंने फौरन चीखो पुकार शुरू कर दी कि हमें मान ले आए, हमें मान ले आए, इसको तूर को हमारे ऊपर से हटाया जाए। तो अल्लाह ताला ने उन तूर को हटा दिया, लेकिन ये फिर अपनी गुस्ताखियों में मुलविस हो गए पहले की तरह। वकुलना लहुम उदखुलुल बाबा सुज्जदन, और फिर हमने इनसे कहा कि दरवाजे से सजदे की हालत में दाखिल हो। तो इन्होंने क्या किया कि सजदे की हालत की बजाय अकड़ते हुए दाखिल हुए। और जो हमने इनसे कहा कूलू हित्ततुन, यहाँ पे नहीं है, वो पीछे हमने पढ़ा है कि हित्ततुन कहते हुए, बख्शिश मांगते हुए दाखिल हुए होना, तो इन्होंने हिंततुन कहना शुरू कर दिया। इन्होंने आटा मांगना शुरू कर दिया, गंदुम मांगनी शुरू कर दी। वकुलना लहुम ला तादू फिस सब्त, फिर हमने इनसे कहा कि हफ्ता के दिन अल्लाह की हदें मत तोड़ना, और इन्होंने हदें भी तोड़ी। क्या था कि मछली वाला जो आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, इनको मछलियां पकड़ना जो था वो मना था, क्योंकि इनका जो तिजारत थी वो मछलियों से ही चल रही थी, मछली की तिजारत करते थे। तो हफ्ता का दिन यहूदियों के लिए इबादत का दिन था, जैसे हमारे यहाँ जुमा का दिन इबादत के लिए होता है। जुमा के दिन हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम के लिए तिजारत रोकने का हुक्म है। यानी जब जुमा की अजान हो जाए उस वक्त हमें ना खरीद सकते हैं कुछ, ना ही बेच सकते हैं, खरीदो फरोख्त हमें मना है। और जब जुमा पढ़ा जाए उसके बाद हम कर सकते हैं, और जुमा की अजान से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए पूरा दिन हफ्ता का जो है मना होता था।
तो मछलियां जो थीं इनकी तिजारत का सबब थी। तो अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पे मछलियां हफ्ता के दिन समंदर के अंदर ज्यादा भेजनी शुरू कर दी, और इनको फरमाया भी कि ये आजमाइश है, इसकी तरफ हाथ ना बढ़ाना। लेकिन इन्होंने हुज्जतबाजी से काम लिया। कभी किसी तरीके से तालाब बना के या जाल लगा के हफ्ता वाले दिन आ जाते, और जाके अगले दिन उसको पकड़ लेते और कहते कि हमने तो इतवार को ही मतलब मछलियां पकड़ी हैं, हफ्ता के दिन तो हम वहां पे छोड़ के आ गए थे समंदर के अंदर। इस तरह हुज्जतबाजी से काम लिया, तो अल्लाह ताला ने फिर इनको इस पे भी सजा दी। वह अखज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और अल्लाह ताला फरमाते हमने इनसे कई बार पक्का वादा लिया, लेकिन हर बार इन्होंने अहद शिकनी की। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, फिर क्या हुआ कि हमने इनको सजा दी इनके अपने वादे तोड़ने की वजह से। वकुफ्रिहिम भी आयातिल्लाही, और अल्लाह ताला की आयात यानी तो रात का इनकार करने की वजह से। वक़त्लिहिमुल अंबिया बिगैरि हक़, और अंबिया को इनके कत्ल करने की वजह से नाहक, यानी अल्लाह के सच्चे नबियों को इन्होंने कत्ल किया। किस कदर बदबख्ती है ये कि अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया जाए। और नाउजुबिल्लाह, इन्होंने लाखों अंबिया को शहीद किया, इन जिनमें से मशहूर अंबिया हजरत जकरिया और उनके बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हैं। ये दोनों भी जो थे यहूदियों के हाथों शहीद हुए। तो बहुत अंबिया को इन्होंने नाहक शहीद किया। वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ, और इनके कहने की वजह से कि हमारे दिल गिलाफ में है। जब इनसे कहा गया कि तुम ईमान लाओ, तो इन्होंने कहा कि हमारे दिल जो हैं पर्दों में हैं, हम ईमान नहीं ला सकते। बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, हकीकत ये है ईमान इसलिए नहीं ला सकते कि इनके दिलों को अल्लाह ताला ने मोहर जब्बारियत के अंडर कर दिया है। मोहर जब्बारियत इनके ऊपर सब है। मोहरे जब्बारियत कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से दिल का सख्त हो जाना। दिल ऐसा सख्त हो जाता है कि फिर वो किसी चीज से नरम नहीं पड़ता, और इसी तरह कुफर की हालत में इंसान दुनिया से चला जाता है। अल्लाह की पनाह। फला युमिनूना इल्ला कलीला, लिहाजा ये ईमान नहीं ला सकेंगे, हाँ कुछ थोड़े से लोग इनमें से ईमान लाएंगे। वबिकुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहताना अज़ीमा, और इनके कुफर करने की वजह से और इनके मरियम पर बहुत बड़ा बुहतान लगाने की वजह से हमने इनको सजा दी, और सजा वो हमने पड़ी है, हमने इन पर पाकीज़ा चीजें हराम कर दी। मरियम पर इन्होंने नाउजुबिल्लाह बुरा इल्जाम लगाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ाना तरीके से हुई बगैर बाप के, तो इन्होंने मरियम के किरदार पे उंगली उठाई, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पे। तो अल्लाह ताला फरमाते इस वजह से भी हमने इनको सजा दी। व कौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, और इनके ईसा इब्ने मरियम जो अल्लाह के रसूल हैं उनके मामले में इन्होंने ये कहा कि हमने उनको कत्ल कर दिया है। इस वजह से भी हमने इनको सजा दी। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, तरदीद फरमा रहे अल्लाह ताला, नफी फरमा रहे हैं, हालांकि नहीं उन्होंने उसको कत्ल किया और ना ही उसको सूली चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, और लेकिन उनके लिए तशबीह बना दी गई। ये वाकया पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इतनी वजाहत के साथ यहाँ पे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। और ईसाइयों के लिए ये बहुत बड़ी जो है खुली तबलीग है, और इतना क्लियर कट अकीदा जो है उनकी अपनी किताबों में भी नहीं जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जितना कुरान पाक ने वाज़े फरमाया है कि उसको नहीं कत्ल किया उन्होंने और ना ही सूली चढ़ाया है, और लेकिन उनके लिए तशबीह बना दी गई। तशबीह इस तरह बना दी गई कि जिसने उनकी मुखबरी की थी, वो गद्दार दोस्त जो था उनका, उसी को अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल अता फरमा दी उस वक्त, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया आसमान की तरफ। तो उनको लगा कि यही ईसा है, उन्होंने उसी को पकड़ के सूली चढ़ा दिया। वो चीखता रहा कि मैं हूँ, मैं ईसा नहीं हूँ, मैं फलां हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी चाल है। तो कत्ल से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये यहूदियों ने किया।
उन्होंने कत्ल कर दिया, इस वजह से हमने उनको सजा दी, सॉरी कत्ल करने की कोशिश की। और ये धड़ल्ले से बड़े ऐसे बताया जैसे कोई कारनामा किया है। अल्लाह के नबी को तुम शहीद करने का दावा कर रहे हो, और इतनी ज्यादा अकड़ और इतना ज्यादा जो है गदर, कि तुम अ, इस चीज को मनवा रहे हो लोगों से कि हमने ईसा को कत्ल किया है, हमने उसको सूली चढ़ाया है। हालांकि शर्म से मर जाना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये गुस्ताखी थी इनकी। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला, वो तो मामला अलग है कि अल्लाह ताला ने उनको सूली नहीं चढ़ने दिया और कत्ल नहीं होने दिया, लेकिन इनकी गुस्ताखी ये है कि इन्होंने बहुत जो है दावे से और बड़े फख्र से ऐलान किया कि हमने ऐसा किया है। वक़ौलिहिम इन सॉरी वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फ़ीही लफ़ी शक्किन मिन्हु। और अल्लाह ताला फिर वही बात फरमा रहे हैं कि जो जिन्होंने ईसा के बारे में इख्तिलाफ किया है वो इसके मामले में शक में है। मालहुम बिही मिन इल्म इल्ला इत्तिबाअ-ज़न्न, उनको इस बारे में कोई इल्म नहीं है सिवाय ख्यालात की पैरवी के। जो कुछ भी इस बारे में किस्से कहानियां घड़ी गई हैं वो सब ख्यालात हैं, इल्म की बात उसमें कुछ भी नहीं है। वमा कतलूहु यकीना, फिर तीसरी बार तरदीद फरमाई कि यकीनन उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया। बल रफ़अहु इलैहि, बल्कि ईसा को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया, आसमान की तरफ। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और अल्लाह ताला इस बात पर गालिब भी हैं और हिकमतें भी जानते हैं कि क्या वजह है इसकी। व इम्मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती, फिर पांचवी तरदीद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले किताब जो हैं ये भी ईमान ले आएंगे ईसा की अ, मौत से पहले, कि ईसा को अल्लाह ताला ने आसमान पर जिंदा उठाया है, इस बात पर। यानी जब क़यामत के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारा जाएगा, और ये जितने भी यहूदी मौजूद होंगे उस वक्त, और जितने भी ईसाई मौजूद होंगे, ईसाइयों का ये अकीदा है कि हमारे जो नबी हैं हमारे सारे गुनाह लेकर सूली चढ़ गए हैं, इसलिए अब हम जितने भी गुनाह कर लें, हम हमें कोई पकड़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे नबी ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हमारे गुनाहों की खातिर वो जो है सूली चढ़ गए हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि गुनाह करने के बाद उसका जो है वो करना होता है, उसका सजा काटनी होती है, या उसका कोई भी फिदिया देना होता है। तो इनका फिदिया पहले से ही हो चुका है, नाउजुबिल्लाह। ये जो मर्जी करते रहे, इनका फिदिया इनके नबी ने दे दिया, ये इनका अकीदा है। तो ये भी एक गुस्ताखी है कि आप, तो आपकी कोई हैसियत ना हो और आपकी खातिर आपका नबी सूली चढ़ जाए, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी आप समझे कि सोच है कि नबी के लिए आप ये सोच रखें। तो ईसाई और यहूदी दोनों ही जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नीचे आसमान से नीचे उतरता देखेंगे और यहाँ पे आके जिंदगी गुजारता देखेंगे, तो उस वक्त ईमान ले आएंगे। यकीन हो जाएगा उनको कि वाकई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा था वो सही नहीं था। व यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनके खिलाफ गवाही देंगे कि इन्होंने जो जो कुछ भी उनके साथ किया उस सारी सारी चीजों की गवाही देंगे। फबिजुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू, और यहूदियों के जुल्म करने की वजह से हर्रमना अलैहिम तय्यिबात, हमने उन पर पाकीज़ा चीजें हराम कर दी। वहिल्लत लहुम, जो उनके लिए हलाल थी। मसलन ऊंट का गोश्त, पीछे हमने पढ़ लिया है कि ऊंट का गोश्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हकीम ने मना किया था, क्योंकि उनको ये जो बीमारी थी, दर्द होता है एक टांग के अंदर, एक टांग खिंच जाती है, उसको कहते हैं इरकुन नसा। अक्सर औरतों को भी होता है और मर्दों को भी होता है, ये एक टांग खिंच जाती है और बहुत शदीद दर्द होता है। और शायद ये वादी की वजह से होता है, इसी वजह से ऊंट का गोश्त उनको हकीमों ने बहुत सख्ती से मना किया। तो फिर क्या हुआ, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं खाते थे तो उस दौर के सारे लोगों ने ही खाना छोड़ दिया। हालांकि
अल्लाह ताला ने हलाल किया था लेकिन उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी नस्लें आगे बढ़ती गई वो सख्ती से मना करते गए और उन्होंने हराम की तरह उसको कर दिया। यानी पहले एहतियातन एहतरामन नहीं खाया कि हजरत याकूब नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खाएंगे। फिर बाद में जो है जो जो आगे बढ़ा काम तो इन्होंने इनकी नस्लों में आके ये बात मशहूर होगी। यहाँ हमारे यहाँ भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिस नस्ल में वो चीज होती है इतनी बड़ी नहीं होती, आने वाली नस्लों में बहुत बड़ा हवा बन चुकी होती है। तो यही हुआ, इन्होंने वो अपने ऊपर हराम कर दिया। इसी तरह और बहुत सारी चीजों को इन्होंने अपने ऊपर हराम किया तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर पक्का पक्का उसको हराम कर दिया। फिर हुक्म आ गया कि अब तुम्हारे लिए ये जायज ही नहीं है। वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, और अल्लाह की राह से रोकने की वजह से, बहुत ज्यादा रोकने की वजह से भी हमने इनके ऊपर पाकीज़ा चीजें हराम कर दी। यानी लोगों को अल्लाह की राह से रोकते थे। और तो अल्लाह की राह की तरफ जो भी आना चाहता वो उसको मना करते और हुज्जतबाजी करते और मुख्तलिफ दलाइल देते। व अख्ज़िहिम रिबा व क़द नुहू अन्हु, और सूद खाना इनका जो था ये बहुत बड़ी बीमारी थी इनके अंदर और आज भी है, और अब तो मुसलमानों में भी फैलती जा रही है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाएं। सूद से इनको रोका गया था लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खाया। व अक्लिहिम अम्वालन नासी बिल बातिल, और हर बातिल तरीके से इन्होंने लोगों का माल खाया। कभी तावीज गंडे दे के उसके बदले में, कभी सूद की सूरत में, कभी झूठ लगा के किसी के ऊपर, कभी इल्जाम लगा के, कभी किसी को डरा धमका के कि हम पीर हैं तुम्हारे, हमारे साथ गुस्ताखी नहीं करनी। कभी ये कह के कि उम्मियों का माल हमारे लिए जायज है, उम्मियों का माल हम खा सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे इनके, बातिल तरीके। आज हम मुसलमानों के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें बचाए। आतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और हमने काफिरों के लिए, उनमें से जितने भी काफिर होंगे उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया है। लाकिन रासिखून फिल इल्म, लेकिन कुछ उनमें से अहले किताब में से पुख्ता हैं तौहीद में। वलमुमिनून युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, वो ऐसे हैं कि वो ईमान रखते हैं उस कुरान पर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और उन किताबों और सहीफों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई। वल मुकीमीन अस्सलाह, और वो नमाज पढ़ते हैं। वल मुतून ज़का, और वो ज़कात अदा करते हैं। वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अहले किताब में से ईमान कबूल किया, तो अहले किताब में से जो ईमान वाले बने उनको दो शरीयतों पर अमल करने का अजर मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से। उनमें से एक मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम है, जो पहले यहूदी थे और फिर बाद में इस्लाम भी कबूल किया। और जब यहूदी थे तब यहूदियत पे भी उन्होंने सही अमल किया, मतलब जो उसके अंदर तब्दीलियां की गई थी उसके मुताबिक नहीं, जो सही अच्छा असल इल्म था अल्लाह की तरफ से उसके मुताबिक। तो बाद में फिर इस्लाम भी सही तरीके से कबूल किया। व उलाइका सनुतीहिम अजरन अजीमा, अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए भी बड़े अजर का वादा है। ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम और ईमान किसी मखसूस तबके के लिए है, बल्कि यहूदियों में से कोई ईमान ले आए तो भी, ईसाइयों में से ले आए तो भी, किसी भी मजहब में जो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा उसके लिए वो सारे वादे हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ किए हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा प्यारा मजहब कोई भी नहीं है दुनिया में। सदकल्लाहुल अज़ीम, सदक।